हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? ठीक हैं। बताइए सर। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में कुछ बचा हुआ है। लेट्स दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस क्या है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसको बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो सर एग्जाम का कुछ डेट हो गया है या कुछ? एग्जाम का एंड सेम का डेट दिवाली के बाद है शायद। अच्छा। ऐसा है, दिवाली छुट्टी अच्छा। के बाद है या पहले, ऐसा कुछ डेट है। वो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा है ना, शायद उसी में होगा। अच्छा। हाइपोथेसिस कहाँ गया। ठीक है, ये वाला रहा। आपको स्क्रीन दिखा भी? जी सर। ठीक है। तो आवर टॉपिक इज what is hypothesis, and then how we are going to test this hypothesis. So first upon we should know what is different types of hypothesis and how to test a different hypothesis. So hypothesis is nothing but the assumptions or a solutions which is mostly hypothesized or mostly predicted before doing the actual research. The meaning of research hypothesis, we are not only simple hypothesis something, but we are studying about the research hypothesis. That means the problem, whatever the problem we are going to discuss or we are doing, that solutions, what may be the possible solutions. So according to your assumptions you are go to the research. So the research hypothesis refers a tentative solution to a problem which is framed in the advance before collection of analysis of data or before doing your research. Whenever whatever may be, you just predicted a solutions that may be true, may be false, may be correct, may be wrong, whatever may be. But according to your view, you have to predict or you have to assume a solution of the research questions, and that is called the research hypothesis. Once the research hypothesis is fixed, then your research work is going to simultaneously, after the finishing of research work, you have to again recheck what are the results you are getting and what the assumptions you are predicted before doing the result. So we have to match that things. So this process of hypothesis is very much important in the research work. So hypothesis is also a proposition, condition, or some assume solutions may be called as, that may be true, may be false, may be correct, may be wrong, or may be accept. We have to accept after the research work, or you may be rejected after research work. So there are different types of hypotheses are there. What are that? The different type of hypothesis can be formed. Let's say this is examples. The hypothesis may be formed to describe a characteristics of populations of the universe. It may also be states the percentage proportion of the universe, maybe some kinds of characteristics. For example, you are doing the research by collecting some sample of a universe. Universe is the whole area where you are doing to research, but you cannot select every one of populations of the whole universe. So your duty is to collect samples. So how these samples are collected, the sample collection methods already we have finished. Then after sample are get collected, you are as a representative of whole population, your samples are the mainly going for the research work. So for this purposes, the particular purposes or particular characteristics we are going to be defined
So we have to propose this type of hypothesis. Here there is examples. The level of primary education. See, the researcher is not only the scientific research. There may be a different types of research, but this hypothesis, propositions, all the things are works everywhere. So in generalized subject, we are going to understand what is hypothesis and how we can get tested. Here is examples given as the level of primary education in government schools of Uttar Pradesh is not satisfactory. Here you are going to predict some outcomes that government schools are better or private schools are better. You someone is going to do research on that thing. So on the basis of the whatever you are going to see, जो आपको दिखता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में हाँ नहीं अच्छा पढ़ाया जाता है तो हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में इतना पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का कुछ बोल रहा है, ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश में वो जो पढ़ाने का लेवल है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. ये आपका हाइपोथेसिस है. बाय सीइंग ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस और जनरल हाइपोथेसिस, कोई आपका जो है बिफोर गोइंग टू और बिफोर कैरिंग आउट एनी रिसर्च, आप डिटेल्स जाके स्कूल में इंक्वायरी करना है, सर्वे करना है, बाकी सब नहीं करना है. पहले से ही हमको एक आइडिया ले लेना कि ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल नहीं है, ये आपने एज्यूम कर लिया. देन द proportion of student strength regular classes is decreasing in higher education. इसीलिए और एक स्टेटमेंट दिया कि इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है उसकी वजह से क्या होगा, तो स्टूडेंट्स व्हिच आर अंडरगो टू द हायर एजुकेशन, सो वो लोग डिक्रीज हो रहे हैं. So this is terms as descriptive hypothesis. Here it is called a descriptive hypothesis. You are going to describe something on the basis of your assumptions. आपका जो assumptions पहले लिया, जो hypothesis कि हम प्राइमरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट का अच्छा नहीं पढ़ाते हैं वहीं पे, इसी के वजह से वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट जो हायर सेकेंडरी में है वहां पे बच्चे कम दिखाई देते हैं, वहां पे स्टूडेंट क्योंकि प्राइमरी पढ़ते नहीं है गवर्नमेंट में, तो इसीलिए ज्यादातर आगे नहीं जा पाते हैं. ये आपका जो डेस्क्रिप्टिव है एक वजह से दूसरा जो भी है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज डेस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बिकॉज यू आर डिस्क्राइब समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एज्यूम्पशंस. सेकंड इज it may be from a statement describing the relationship between two or more variables. ये तो descriptive हो गया. अभी दूसरा केस में क्या होगा, दो वेरिएबल्स है उनको रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, कोई फ्रीक्वेंसी है इस ये इवेंट हो रहा है तो उसके बाद ये सीरियली सेकंड इवेंट थर्ड इवेंट ऐसे हो रहा है, तो उसके बारे में कोई रिलेशनशिप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीओडी सीओडी और डीओ में रिलेशनशिप है, जैसे कि टेम्परेचर और डीजल ऑक्सीजन रिलेशनशिप है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डीजल ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, बीओडी इंक्रीज होगा तो सीओडी भी इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें, डीजल ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बीओडी डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो ये रिलेशनशिप होता है. यहाँ पे और एग्जांपल्स दिया हुआ है, families with low income spend greater portion of the consumer goods, term is relational hypothesis. Second hypothesis is called as relational hypothesis. First type of is called descriptive hypothesis. Second type of hypothesis is called relational hypothesis. In this case you have to relate two things like family with low income spend greater portion of the ऑन कंज्यूमर गुड्स. ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल्स दिया कि बीओडी सीओडी का जो रिलेशन है, ऐसे जो लो इनकम वाला फैमिली है वो सस्ते माल में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो लाइक दैट यू हैव टू रिलेट समथिंग. हियर इनकम इज रिलेटेड टू गुड्स. इफ हाई इनकम देन हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स. लो इनकम है इसीलिए जो गुड्स है उसका भी कंज्यूम क्या होता है, कम होता है, तो उसी टाइप का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल हाइपोथेसिस. थर्ड पॉइंट इज, see sometimes hypothesis is formed in the purpose of making comparison. पहले था descriptive hypothesis, second हो गया relational hypothesis, third is called comparison between two variables. आपको compare करना है कौन सा बेहतर है, whether this statement 1 is better या statement 2 is better. Examples यहाँ पे दिया है. For examples here, girls performance is better than boys performance at level of schooling. स्कूल के टाइम पे गर्ल जो है लड़कियां लोग ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू बॉयज. ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट है जो कि हमारा हाइपोथेसिस है. मान लो कोई हम रिसर्च करने जा रहे हैं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं उसमें से 50% बॉयज हैं 50% गर्ल्स हैं, तो देखा कि 5 साल से कि उसका जो गर्ल्स हैं टॉपर होते जा रहे हैं, और किसी का 80% 90%, बॉयज जो है उधर फालतूगिरी करने में उनका टाइम बर्बाद हो रहा है. तो ऐसे एक
हमको जो सिचुएशंस आएगा उसके हिसाब से कंपेयर करना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव हाइपोथेसिस. दैट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कंपैरेटिव हाइपोथेसिस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. Next is another type of hypothesis which are asserts a particular characteristics of one of these factors which determine another characteristics. मतलब एक की characteristics जो है that depends on different types of characteristics. So in the other words, it changes with the variable that is called dependent variable, independent variables, and this type of hypothesis is called the cause and effect hypothesis, or relational, or it is or more prescribed that it is a causal hypothesis. उसको क्या होगा, ये भी एक टाइप का रिलेशनशिप है, बट व्हेन एवर देयर इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स. व्हाट इज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल. देयर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मदर वेरिएबल. मतलब उसको जो पेरेंट्स वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल y equal to x plus 1. y is the dependent variable which depend the value of x. x के वैल्यू में 1 2 3 जितना पुट करेंगे y के वैल्यू अलग अलग होते जाएगा. बट x is independent variable. x तो अपने आप खुद एक वेरिएबल है. बट when y we are relating to y, the relation is y equal to x plus 1. So in that case this y value is mainly due to the value of x. So x is independent and y is dependent variable. So the relationship between the x and y, this type of thing whenever appears in our hypothesis, this is called causal hypothesis, because the cause of one variable which is the result of another variable. So this is called cause and effect relationship, and this is called causal hypothesis. So there are 4 types of hypothesis हो गए. Then fifth number case क्या होगा, sometimes researchers is not very sure about the phenomena in the questions and the lack of background information. कुछ information ऐसे होता है उसको details background में क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, but you are going to make some hypothesis, उसको general statement देना है. तो उसका केस में क्या करेंगे, this in this case he make or take a hypothesis which is not very specific in the subject and modifications during the conducting the research process, and such hypothesis called as working hypothesis. ये जो है this is called working hypothesis because it is the hypothesis is not clear at all because you do not know the background data or background information. So on the basis, because you have to put a hypothesis to carry a research work, so you have to just put a random hypothesis which is may subjected to change at your working places. जैसे आप रिसर्च करते करते जाएंगे तो ये हाइपोथेसिस चेंज होते होते जाएगा अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट. तो ये जो हाइपोथेसिस है दिस इज कॉल्ड वर्किंग हाइपोथेसिस. सो दीज आर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर. यहाँ पे और एक हम लोग छूट गए, क्या था ये, हाँ, दिस मेजर ऑफ डिफरेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू statistical value based on the parental data, that is called statistical hypothesis. For example, there are no significant difference between the two samples taken by the same populations. So there is no association between literacy and criminality. तो इस टाइप का हाइपोथेसिस का हम लोग कब स्टेटमेंट देंगे, मान लीजिए सेम एरिया में 2 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ा. कोई एरिया में 2 बार आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ा, मीडियन कैलकुलेट करना पड़ा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा. So at that case you have to state that there is no significant difference between two sets of results. 2 बार हमने रिजल्ट निकाला है लेकिन दोनों सेट्स में रिजल्ट्स जो है सेम आया, that means no difference. So in that type of hypothesis, that is also called as statistical hypothesis because this result is fully based on statistical analysis. यहाँ पे आपको क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू में टेस्ट करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट. these are different type of statistical tools are there where in that case you are going to test this hypothesis, and this is called pure statistical hypothesis. So there are 6 types of hypothesis are there, and every hypothesis there are having its own significant value. So next is what are the good
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस और व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। जैसे कि हम लोग हाइपोथेसिस हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे। ए गुड यूजेबल हाइपोथेसिस इज वन व्हिच इज सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको कुछ पॉइंट्स है वो सैटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट इज hypothesis should be empirically stable and able to deduct logical inference। जैसे कि आपने याद किया जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च। रिसर्च जैसे करने के टाइम पे रिसर्च शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी एनालिटिकल, इट शुड बी ट्रांसफरेबल। ये होता था ना, इट शुड बी इथिकल। तो ऐसे जो है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो hypothesis should be satisfy the following thing क्या क्या, that is it should be empirical testable and able to deduct logical inference। empirically testable, that means the statement which you are giving as a hypothesis, that should be practically possible and that should having sufficient number of proof to prove that hypothesis is either true or false। उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए और आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो कि इम्पॉसिबल हो और इम्प्रैक्टिकल हो, उसका प्रूफ नहीं है, ऐसे नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक केस बता रहा हूँ, कोई मर्डर केस है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको रिसर्च करना है, तो ऐसे ही उसका चेहरा देख के नहीं बता सकते हैं कि नहीं ये इसका चेहरा खतरनाक है तो ये किलर है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज यू हैव टू प्रूव, आपके पास प्रूफ नहीं है, सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए और जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है इस टाइप का आपको स्टेटमेंट देना है उस टाइम पे। तो दैट इज द गुड हाइपोथेसिस। और उसका जो आपका स्टेटमेंट हाइपोथेसिस में ये प्रूफ पॉइंट नहीं है तो दैट कैन नॉट बी ए गुड हाइपोथेसिस। सेकंड पॉइंट इज हाइपोथेसिस शुड बी क्लोजेस्ट टू थिंग्स ऑब्जर्वेबल एंड शुड बी एनेबल टू रिसर्चर्स टू रीच एज द करेक्ट डिसीजन। उसको हापाजर्ली नहीं होना चाहिए और जो ऑब्जर्वेशंस मोड है तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर आना चाहिए, दायरे के अंदर आना चाहिए। मतलब व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू और व्हाट एवर यू आर हाइपोथेसाइज, दैट थिंग्स आर इन टच विथ यू। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर है कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका रिसर्च के दायरे में बाहर है और आप उस टाइप का हाइपोथेसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई कारण से चंद्रयान फेल हो गया, तो आप ऐसे हाइपोथेसिस नहीं कर सकते कि रास्ते में ब्लैक होल में घुस गया वो, बिकॉज दैट इज ए अनरिलेबल थिंग्स, दैट इज नॉट क्लोजेस्ट टू यू। सो व्हाट एवर बी you are going to schedule, whatever we going to put your statement, that should be in catchable your case things। आपका नजदीकी चीज होना चाहिए और आपका ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, क्योंकि दैट स्टेटमेंट में बी गोइंग फॉर ए राइट डिसीजन। आपका जो लास्ट में जो डिसीजन लेंगे तो ये हाइपोथेसिस और टेस्ट का रिजल्ट दैट्स प्ले ए मेजर रोल फॉर ए डिसीजन। और एग्जांपल से लेता हूं, मैगी खाना सेहत के लिए खराब है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। मैगी इज नॉट गुड फीड फॉर द और नॉट हेल्दी फॉर ईटिंग पर्पजेस। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप कब देंगे, जब आपके पास खुद बनाया मैगी, वो खाने के बाद बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, तभी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपका नजदीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आर्बिटरली हम उसको, बिकॉज दैट स्टेटमेंट में बी कॉज ए बिग टाइप ऑफ ट्रबल, वो डिसीजन लेने में पूरा हेल्प करेगा। तो शायद ये रिसर्च होने के बाद मान लीजिए वो जो आपने स्टेटमेंट दिया दैट इज ट्रू, देन होल कंपनी विल बी बैंड। तो इस टाइप का डिसीजन जब लेना होता है तो आपका ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा। देन इट शुड बी, थर्ड नंबर पॉइंट, इट शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड लिविंग नो स्पेस फॉर एम्बिगुटी। पूरा क्लियर होना चाहिए और एम्बिगुटी नहीं रहना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई किसी के टाइप के फेवरेबल नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द मेन थिंग। नंबर फोर्थ इज द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक बट इन जनरल टर्म। ये दोनों क्या बोले, स्पेसिफिक भी होना चाहिए और जनरल भी होना चाहिए, इस टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी वेरी ओनली स्पेसिफिक और ओनली जनरल, ऐसे सेंटेंस और स्टेटमेंट नहीं देना है। जैसे कि एग्जांपल्स देते हैं, पानी, बोतल वाला पानी अच्छा नहीं है, या दिस वाटर इज पॉल्यूटेड। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट हो गया, क्यों उसमें पॉल्यूटेड है, क्यों सही नहीं है चीजें को, ये डायरेक्ट स्पेसिफिक आंसर भी आपको करना पड़ेगा।
So is this these are the most essentials of a good hypothesis. So before putting a hypothesis, all researchers should be carefully examine whatever the statement they are giving, which is empirical or which may be observable and which having no ambiguity, and it should be specific, it should be general and conceptually clear. All these points should be keep noted. Then procedure for testing a hypothesis. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक तो स्टेटमेंट हमने दे दिया, उसको हाइपोथेसिस में मान लेते हैं हम लोग। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद उसको कैसे टेस्ट करेंगे, वेदर द हाइपोथेसिस और समथिंग वी आर। हाइपोथेसिस मतलब क्या है, आपने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कि राहुल गांधी खराब इंसान है या राहुल गांधी उसके साथ मिला हुआ है, ऐसे होता है ना, पॉलिटिकली भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, को जो भी उसको टेस्ट करना होता है, प्रूफ निकालना पड़ेगा या जाके सुनना पड़ेगा, कुछ भी करके। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। So in your research, if you are stating something or if you are going to assume something, in order to verify your statement, we have to prove it. So that type of test, the process is called as testing of hypothesis. आपका hypothesis को सही है गलत है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा, हमको टेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट प्रोसीजर, देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आर देयर। सो वी हैव टू नो every steps, what are the steps for the testing of hypothesis. So after having completed corrections or some analysis data procedure followed by the determining null hypothesis to be accepted or rejected. So hypotheses are two types. First is called null hypothesis, second is called alternative hypothesis, alternate hypothesis. तो कोई भी सेंटेंस आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको हमको क्या करेंगे, डिनाई करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये दोनों आता है। तो बिफोर गोइंग टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस, there are 5 different stages are there. What are the stages we are going to study in detail? First number point is setting of a hypothesis. हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए पहले हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे और किस टाइप का हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। सो फर्स्ट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। सो बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, लेट्स रीड द थिंग्स। क्या था ये, at the very outest the certain hypothesis with regard to related to variables, these are two forms of, that is either it is accepted or rejected. I have discussed these things. So first is called null hypothesis. So आपको मैंने बोला कि टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, एक होता है नॉल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉल हाइपोथेसिस एक ऐसा चीज है जो कि आपको इनिशियली इन्फाइट करना है, एज यू आर ए एग्जामिनर और एज यू आर ए रिव्यूअर, आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो आपको एक हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में रिजल्ट में देखेंगे। आपने हाइपोथेसिस किया कि इंडिया जीत जाएगा, मैंने हाइपोथेसिस किया इंडिया हार जाएगा, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस। सो व्हिच टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू हैव टू चूज, आपको क्या चूज करना चाहिए, इंडिया जीतेगा या इंडिया हार जाएगा। दो चीज है, इंडिया जीतेगा दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव थिंग, इंडिया हार जाएगा दैट मीन्स ए नेगेटिव थिंग। सो बिफोर गोइंग टू द स्कोर बोर्ड, जो भी है आपका कंडीशन जो भी है, ये स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो व्हिच टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू हैव टू गिव। तो आपका स्टैटिस्टिकल बुक बोल रहा है कि आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट देना है पहले, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉल हाइपोथेसिस। नॉल हाइपोथेसिस मीन द इंडिया इज गोइंग टू लूज और इंडिया इज नॉट गोइंग टू विन, एक ही बात है, ये होता है नॉल हाइपोथेसिस। नॉल मींस whenever there is a statement that is a negative sense, the word negative means null। तो आपको इस टाइप का स्टेटमेंट सोचना है पहले कि काम बिगड़ रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं चीज, नॉट, नो, इस टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पहले ही सोचना है और ये हाइपोथेसिस आपको करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है जो आप सोचोगे वो रिजल्ट आएगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर व्यू और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग,
आपको इस टाइप का हाइपोथेसिस रिसर्च करने से पहले आपको चूज करना पड़ेगा. सो दिस हाइपोथेसिस एंड ऑल हाइपोथेसिस इज द वेरी यूजफुल टू टेस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस. डिफरेंस मतलब क्या है? इफ यू आर गोइंग टू things that is either it is true or either it is false, either win or either it is reject, कुछ भी हो या इसका वैल्यू ये आएगा ये नहीं आएगा, ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस को ये पहले डिफाइन करता है. दैट इज द नॉट नॉल हाइपोथेसिस. यहाँ पे एग्जांपल्स है देखिए. वी एज्यूम दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैंपेन ऑन पब्लिक अवेयरनेस. दिस इज ए स्टेटमेंट. अभी जो रिसेंटली चल रहा है, व्हाट इट इज गोइंग ऑन, रिसेंटली गोइंग ऑन दैट द आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो रहा है बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस क्लाइमेट चेंज और ऑल दिस थिंग्स और सम रिजल्ट्स. पॉल्यूशन के बारे में, प्लास्टिक के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस है रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. तो आपको एक हाइपोथेसाइज करना है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस कैंपेन, जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस का इतने सारे चलाए जा रहे हैं मुहिम, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. ये होता है नॉल हाइपोथेसिस. दैट मीन्स देयर इज ए वर्ड नेगेटिव सेंस और नो इफेक्ट, नो चीज, नो. ये पहला आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपका दिमाग में आना चाहिए बिफोर गोइंग टू सेटिंग ए हाइपोथेसिस. दैट इज कॉल्ड नॉल हाइपोथेसिस. यहाँ पे और एक एग्जांपल्स है, और एग्जांपल्स है. फॉर वी वांट टू गो फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट टू फाइंड वेदर एक्स्ट्रा कोचिंग हैज बेनिफिटेड द स्टूडेंट और नॉट. ये आपको रिजल्ट को जानना है कि कोई आपका बच्चा है उसको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास का जरूरत होता है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर में एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं. तो हमको जानना है वेदर दे कोचिंग क्लास जो बाहर में देते हैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च के हैं, उसका कुछ उसका पढ़ाई में इफेक्ट आ रहा है, उस मतलब फ्रूटफुल है कि नहीं है. ये आपको रिसर्च करके फाइंड आउट करना है. तो आप बिना रिसर्च किए पहले ही आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे एज ए नॉल हाइपोथेसिस. तो क्या स्टेटमेंट देंगे? नो नो नो, द एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हैज नॉट बेनिफिट द स्टूडेंट. ये आपका नॉल हाइपोथेसिस हो जाएगा. बिकॉज नॉल हाइपोथेसिस इज द प्रायोरिटी. आपको नेगेटिव सोचना है. जो चीज है that is the your thinking is a null way, that's why it is called null hypothesis. That means example, the extra coaching has not benefited to the student. ये आपको स्टेटमेंट देना है. इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि जो कोचिंग जो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में आपको रिजल्ट मिल रहा है. उसका मार्क मान लो रिजल्ट के बाद अच्छा आया तो ठीक है, उसका तो फायदा हुआ, लेकिन वो मार्क्स आने से पहले हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, रिसर्च करने से पहले. तो ये जो इफेक्ट है, that null effect or no thing or negative thing, that is the negative, sorry, that is the null hypothesis. Examples, और एक examples है, if you want to find whether the particular drug is effective or malaria or no. Second thing, कोई आपका एक मेडिसिन निकला हुआ है, वो मेडिसिन खाने के बाद मलेरिया छोड़ो कोरोना में आते हैं, कोरोना ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको जानना है. तो क्या करेंगे? एनालिसिस रिसर्च बाद में, पहले आपको सोचना है और एक स्टेटमेंट देना है, हाइपोथेसिस देना है. तो उसमें आप क्या करोगे? नो, द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव फॉर दिस कोरोना वायरस. ये सीधा आप स्टेटमेंट दे देना. दिस इज कॉल्ड नॉन हाइपोथेसिस. फिर टेस्ट करेंगे हम लोग, ये मेडिसिन खुआएंगे, फिर देखेंगे क्योर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका अलग बात है फंडा. लेकिन पहले यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू चूज ए नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव इन योर माइंड एंड डिनाई दिस थिंग्स. दैट इज द नॉल हाइपोथेसिस. हाँ, ये चीज सही है कि उसके बाद उसका नहीं हुआ तो क्या होगा, दैट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो सेकंड हाइपोथेसिस. उसमें आएंगे एक एक क्वेश्चंस. So here null hypothesis है, the drug is under experimentation is not effective to the malaria. ये हो गया. तो ये होगा आपका null hypothesis. और एक similarly थर्ड क्वेश्चन है, the testing of significant difference between these two samples should be checked. जो significant difference है वो सही है कि नहीं है चेक करना है. तो in that case थर्ड पॉइंट, there is no significant difference between two sample data. दो ग्रुप ऑफ डाटा है, उसमें कुछ हमको चेंजेस है कि नहीं फाइंड आउट करना है. तो उसका हाइपोथेसिस क्या होगा? नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, नो डिफरेंस. तो नो वर्ड्स आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए नॉल हाइपोथेसिस.
अभी नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट वी हैव पुट ए null hypothesis, then the null hypothesis may be wrong और may be right. null hypothesis means जो हमने नेगेटिवली सोचा है, मान लो सही हो गया, मान लो सही हो गया, तो क्या होगा, null hypothesis is accepted, that means your statement और your assumptions become true. ठीक है, हम जो सोचा वही मिला रिजल्ट में. मान लो नहीं हुआ, द सेकेंड पॉइंट, द रिजेक्शन ऑफ दिस नॉल हाइपोथेसिस, मतलब जो हाइपोथेसिस आपने सोचा, जो नेगेटिवली पॉइंटली व्यू दिया, वो सही नहीं है, दैट मीन्स उसका जो ऑल्टरनेट थिंग है दैट विल बी मोर राइट. इन दैट केस द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ नॉल हाइपोथेसिस कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. देखिए, this second is called alternate hypothesis. So alternate hypothesis is something that is fully opposite to the null hypothesis. null hypothesis हम नो 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 नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसका उल्टा, हाँ सब सही हो जाएगा, जो चीज है वो सब सही है, तो ये सोचना जो है मतलब पॉजिटिव वेली, वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो एज द अगेंस्ट ऑफ नॉल हाइपोथेसिस, ये दोनों फुल्ली ऑपोजिट डायरेक्शन है. नॉल हाइपोथेसिस मतलब पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव. एज अगेंस्ट ऑफ नॉल हाइपोथेसिस, नॉल हाइपोथेसिस नहीं करेक्ट हुआ तो क्या होगा, उसका अगेंस्ट में जो दूसरा हाइपोथेसिस आप सोचना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. So in every research you have to put a two forms of hypothesis. First is a negative hypothesis or null hypothesis. Second is वो नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा. दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, कोई एक तो होगा, वो टेस्ट के बाद पता चलेगा whether your null hypothesis is correct or alternative hypothesis is correct. क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो, दो चीज होगा, ये होगा पास होगा या फेल होगा. तो पहले हम क्या सोचेंगे, नहीं फेल हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे, बैठे बैठेंगे. मान लो फेल नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली तो दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो सही हो जाएगा. तो दिस इज द ट्रिक फॉर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड दिस केस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड H1 और HA. नॉल हाइपोथेसिस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, H0. दिस इज H1 और HA, हम इसको डोनेट करेंगे. सो ऊपर में जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा. पहला जो क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जो है दैट इज नॉट इफेक्टिव इन नॉल हाइपोथेसिस, उसका पूरा उल्टा, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हैज बेनिफिट टू द स्टूडेंट. कोचिंग क्लास एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसका क्या होगा, बेनिफिट होगा. नहीं होगा तो नॉल हाइपोथेसिस, उसका उल्टा जो होगा, बेनिफिट, ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सेकंड पॉइंट, जो ड्रग है वो मलेरिया और कोरोना वायरस में इट इज नॉट इफेक्टिव, हमने सोचा था नॉल हाइपोथेसिस में, उसका उल्टा, ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल इज इफेक्टिव, ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. एंड थर्ड इज, जो दो डाटा सेट था उसमें नो डिफरेंस था, दोनों सेम है सोच लिया था हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पूरा उल्टा. उसमें क्या था, सेम हो जाता था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दोनों अलग अलग डाटा है, ये सोचना पड़ेगा. सो एवरी टाइम्स यू आर thinking two statement, one statement or one hypothesis called null hypothesis in negative way, and another statement that is called alternate hypothesis or this is opposite to that null hypothesis. ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइपोथेसिस कैसे सेटअप करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है या ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, H0 जो कि null hypothesis है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स उसमें क्या है, दोनों सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, जो कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है बोल रहे हैं हम लोग, नो बोल रहे हैं. उसका ऑल्टरनेट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं है, यही है उसका मैथमेटिकल फॉर्म्स. सो दीज आर ऑल अबाउट द हाइपोथेसिस और एज्यूम ऑफ हाइपोथेसिस. देन सेकेंड पॉइंट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो ये जो नॉल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. तो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई तो एक हाइपोथेसिस सच होगा ना, एक नॉल हाइपोथेसिस सच होगा तो ठीक, अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, और अल्टरनेटिव सच होगा तो ट्रू होगा तो क्या होगा, नॉल को रिजेक्ट कर देंगे. दोनों स्टेटमेंट हमारे पास है, कोई एक स्टेटमेंट हमारे फेवर में जरूर ही आएगा उसमें. सो उसमें क्या फेवर होगा क्या नहीं होगा, उसको हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर बोलेंगे. सो देयर आर टू probability
two things. What is those two things? When two hypotheses are set up, acceptance or rejections of null hypothesis is based on the study. स्टडी करने के बाद जो पहले हम लोग null hypothesis देंगे उसको सही है कि गलत है वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा. मान लो वो सही है कि नहीं है, रिजल्ट आने के बाद हम लोग को क्या करेंगे उसको टेस्ट करेंगे. तो दैट इज either you have to reject or I have to accept. If you are rejecting null hypothesis, then alternative hypothesis become your acceptable. If you are accepting alternative hypothesis, that means null hypothesis is rejectable. वही ऑप्शन है. So rejecting a null hypothesis or accepting a alternate hypothesis, ये दोनों केस हो सकता है. तो if you are reject the null hypothesis but your result say that it is true, मतलब आपका जो टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या बता रहा है, नहीं नहीं आपने जो हाइपोथेसिस लिया था नॉल हाइपोथेसिस मतलब जो नेगेटिव जो सोच था वो गलत है, तो दोनों क्या होगा, दोनों मैच कर गए. दैट मीन्स इट इज ए करेक्ट डिसीजन. लेकिन इफ यू आर थिंकिंग और एक्सेप्टिंग दिस नॉल हाइपोथेसिस बट द रिजल्ट इज गेट फॉल्स, यहाँ पे सेकंड केस में दैट इज द रॉन्ग डिसीजन. दैट इज type 2 error. Or type 1 error is if you are rejected the null hypothesis but your result will be true. आप जो null hypothesis है उसको reject कर रहे हैं, मतलब alternative hypothesis को accept कर रहे हो, but your testing result find that your result is true. So that is the type 1 error. Type 2 error मतलब क्या है, you are accepting the null hypothesis but result is telling that it is false. That is the type 2 error. यहाँ पे ये टाइप 2 एरर आएगा, ये टाइप 1 एरर आएगा, ये टाइप 2 एरर आएगा. बट इफ यू आर ऑल्सो रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस एंड द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट ऑल्सो स्टेटिंग दैट इट इज फॉल्स, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट डिसीजन. दोनों सही हो तभी भी सही है, जो कि ये इन दिस केस दोनों सही हो, मतलब दोनों आपका जो रिजल्ट आया वो भी ट्रू है और यू आर एक्सेप्टिंग दिस हाइपोथेसिस दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और इन दिस केस your result is also false और your hypothesis is also false. दोनों गलत हैं तभी भी सही है, ये मतलब कहने का मतलब ये है दोनों सही हैं, दोनों ट्रू. if both are true then it is true correct. if both are false then this is also false, this is also true. दोनों भी गलत है तभी भी सही है और दोनों सही है तभी भी सही है, और दोनों में से कोई भी एक गलत है और कोई भी एक सही है, तो दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. if the hypothesis is wrong and your result is true, that is type 1 error, and hypothesis is false and your result is true, that is called type 2 error. So this is the two types of error, type 1 type 2 error. This is called type 2 error, and both type 1 type 2 error are companion to each other. Type 1 error is called as alpha error and type 2 error is called as beta error. So alpha plus beta equal to 1, दोनों को मिलके वैल्यू 1 होता है. So that is the main thing. तो ये टेबुलर फॉर्म है, जो राइटिंग फॉर्म में लिखने से क्या होगा, इफ यू आर रिजेक्ट नॉल हाइपोथेसिस देन इट इज ट्रू, देन इट इज टाइप 1 एरर इज अल्फा. इफ यू आर एक्सेप्ट द नॉल हाइपोथेसिस बट रिजल्ट इज false, that is also type 2 error, that is called beta. And both cases in if you are accept and true then it is also correct, and if you are reject and your result is false then also it is correct. So this is the second two types of error in the case of hypothesis. ये हो गया आपको सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस सेट कैसे करना है, टेस्ट नहीं किया अभी तक, सेट किए हुए हैं. सेकेंड पॉइंट इज सेटिंग ऑफ ए सुइटेबल सिग्निफिकेंस लेवल. सिग्निफिकेंस लेवल्स क्या है, जो ये आपको ग्राफ देख के पता चलेगा. दिस इज द नॉर्मल ग्राफ. नॉर्मल ग्राफ द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था. नॉर्मल ग्राफ मतलब क्या है, पूरा जो होल डाटा है, द डाटा इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स थ्रू इज मीन और मीडियन इक्वल टू मोड. जो बीच में जो है लाइन है ना, ये आपका मीन वैल्यू है. तो मीन वैल्यू से दोनों साइड्स में इक्वली 50-50% डाटा आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो x माइनस प्लस सिग्मा, x प्लस माइनस 2 सिग्मा, x प्लस माइनस 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस, इट विल बी हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसका एरिया जो है अंदर में ज्यादा रहता है. तो the significance level is generally 5% in case of statistical test. Normally क्या होता है, all data are comes in between the 95% confidence level.
95% जो डाटा वैल्यू है वो आपका ज्यादातर क्या होता है, सही डाटा होता है। जो यहाँ पे जो साइड में जो लास्ट में पॉइंट है ना, उसको छोड़ के जो मेजोरिटी एरिया है दैट इज 95%, एंड थोड़ा थोड़ा जो आगे पीछे रह गया है उसको जो टेल एरिया में दैट इज ओनली 5% ऑफ डाटा। सो दैट आर द सिग्निफिकेंस लेवल। आपका जो 95% में आ गया तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड 5% में आ गया तो उसको हमको रिजेक्ट करेंगे। सो फॉर एक्सेप्टिंग योर हाइपोथेसिस इज चांसेस वेरी हाई, और रिजेक्टिंग रीजन इज वेरी लो। जो डॉटेड लाइन्स है, पॉइंट्स है, वो रिजेक्टिंग रीजन है, ओनली 5%, दैट इज कॉल्ड रिजेक्टेड, और दैट इज कॉल्ड टेल टेस्ट। 5% रिजेक्ट होने का चांसेस क्या है, 5% है, और एक्सेप्ट होने का चांसेस क्या है, 95% से। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट लेवल। कितना परसेंट ऑफ डाटा सही रहेगा तो एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो दैट इज द ऑप्शंस। थर्ड नंबर पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेटिंग ए टेस्ट क्राइसन। फर्स्ट क्या, हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस सिलेक्ट कर लिया, दो हाइपोथेसिस था, नॉन हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा पॉइंट में क्या था, कितना परसेंटेज ऑफ डाटा आप में आपको एक्सेप्ट होना है। वो आइदर 95 में होता है नॉर्मली, 95 और 5%, 5 में रिजेक्ट होता है, 95 में एक्सेप्ट होता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, 99 में हम उसको एक्सेप्ट करना है, ओनली 1% में रिजेक्ट करना है, वो भी सही है। आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कितने में सही है कितने में गलत है। 3 नंबर पॉइंट है जो यू हैव टू सिलेक्ट ए क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। जो आपको जो रिजल्ट है जो मिला और जो हाइपोथेसिस है, वो दोनों को बीच में टेस्ट करने के लिए यू हैव टू चूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स आर देयर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेदर इट इज जेड टेस्ट, वेदर इट इज टी टेस्ट, वेदर इट इज एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। 4 तरीका का टेस्ट है, 4 तरीका का टेस्ट है, किसी भी एक टेस्ट में हम लोग को टेस्ट करेंगे, एंड वी हैव टू मेक द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग। ये टेस्टिंग प्रोसीजर में आपको डालना पड़ेगा जो रिजल्ट मिला, दैट इज कॉल्ड सेटिंग ए क्राइटेरिया फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ इज कंप्यूटेशंस। आपको टेस्टिंग करने के बाद क्या होगा, you have to complete all the statistical stat, then you have to put the computing different measures of random size. So you have to apply the test in your actual data। जो डाटा है उसमें एक्चुअल डाटा में उसको फिट करना पड़ेगा, आपका जो वैल्यू आया टेस्ट के बाद, वेदर इट इज करेक्ट और वेदर इट इज नॉट, वेदर फॉल इट इज अंडर दिस कंसिडरेशन और नॉट। तो उसको कॉम्पिटिशन बोला जाता है। कोई दूसरा पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा सा पॉइंट लिखता हूँ आपको, 10 नंबर का एक 10 वी हैव गिवन 10 नंबर्स ऑफ डिफरेंट डाटा। ठीक है, 10 डाटा कलेक्ट किया, लेट्स से इफ यू आर कलेक्टिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव डे, लगातार 10 दिन का टेम्परेचर आपने रीडिंग लिया, तो उसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इफ यू आर टेस्टिंग दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वेदर में कोई चेंजेस नहीं है, तुरंत गड़बड़ी नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, वो टेम्परेचर 25 25 25 26 27 एक दो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोगों ने हाइपोथेसिस किया कि ठीक है डिफरेंस कुछ नहीं है, नॉर्मल वेदर है। फिर हम लोग को टेस्ट करेंगे वो डिफरेंट प्रोसीजर में। टेस्ट करने के बाद आपको एक डाटा मिलेगा वहां पे, लेट से एक्स डाटा आपको अगेन पुट हुआ उसमें टेम्परेचर में। तो इफ यू आर पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन दिस क्राइटेरिया, एंड what is the result, what is the actual result at that point, you have to calculate, that is called the computation stage, computation। उसको कंप्यूट करना, निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड्स निकालते हैं ना, कोई कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू है तो एक स्टैंडर्ड कर्व निकालते हैं, देन कर्व के बाद एक अननोन सैंपल का उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, लाइक दैट सेम प्रोसीजर। लास्ट प्रोसीजर दैट इज मेकिंग ए डिसीजन और कंक्लूजन। ये सारे होने के बाद क्या होगा, रिजल्ट होगा, हाइपोथेसिस होगा, टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, बाद में आपका जो लास्ट फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा, वेदर दिस थिंग इज करेक्ट और फॉल्स, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सीइंग दिस वैल्यू यू हैव टू मेक ए करेक्ट डिसीजन। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे एक्स्ट्रा कोचिंग इज नॉट बेनिफिटेड और बेनिफिटेड, उसका जो वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा कोचिंग आप करा रहे हो उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको पता चला टेस्ट के बाद, सब करने के बाद जो एक्स्ट्रा कोचिंग जो है वो बेनिफिटेड है, रियली बेनिफिटेड है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग को क्या करेंगे, और किसी को भी रिकमेंड करेंगे कि ठीक है कोचिंग का बेनिफिट ये है, मिलेगा, ये सारे हमको कंक्लूजन में लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगा तो हम लोग को ये रिकमेंडेशन देंगे कि भाई कोचिंग कोचिंग मत करो, कुछ काम का नहीं है, ये इसका डीमेरिट है, उसका ये कंक्लूजन देंगे।
तो ये एग्जाम्पल्स था. So similarly, every statistical test or every in case you have to make some last conclusion by seeing all these things. So these are the 5 stages of hypothesis testing. So here important is how to set a hypothesis, that is either setting a null hypothesis or how to set a alternate hypothesis. See the examples. Then type 1 error, type 2 error, what is type 1 error, what is type 2 error, उसको कैसे लिखा जाता है. This is very much important topic in statistical analysis. So इसमें कुछ आप अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि और डिटेल्स में क्या है नहीं है. So if you have any doubts then पूछ सकते हैं आप hypothesis testing में. ओके सर. ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये hypothesis वाला. यस सर. ओके सर. खाना हो गया सर? हाँ खा पी के सो रहा था बस. ओके ओके सर. ओके ओके सर. ठीक थैंक है यू सर. इसको देखना एक बार क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला होगा. डन सर. डन. और एक काम मैं आपको बता देता हूँ. हम एक्चुअली इंटरनल एग्जाम का मार्क हमको सबमिट करना पड़ रहा है. जी तो सर. हमारा तो एग्जाम आपका एग्जाम लिया नहीं मैंने. तो जी मैंने सर. अपने मार्क्स दिए दिया है जी उसको सर. जैसे कि. तो आपका एग्जाम ये मेरे सब्जेक्ट में 32 मार्क्स है. ठीक है. ओके तो मतलब सर. आपके आउट ऑफ जानकारी के लिए बता दिया वैसे ऐसे कि बाद में आउट पता ऑफ चला कि नहीं आपको बताया नहीं. तो शायद आउट ऑफ सर. आउट ऑफ 40. अच्छा सर. हाँ ओके 40 से एक में 32 है और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें शायद 34 है. ओके ऐसा है सर. कुछ 34 35 ऐसा है. ओके सर. ओके. ठीक है. ओके सर. थैंक यू सर. हम्म. थैंक यू सर. बाय. गुड नाइट Right. सर. So level of significance, जो these things is very much important. Please go through this. The maximum possibility of committing type 1 error which we use to specify in a test is known as the level of significance. The maximum possibility of committing the type of error, that means whether it is accepting or rejecting the hypothesis, which level. The 5% level, that means statistical test is fail, and 95% chances that is accepting hypothesis. So this is the level of significance. The range of variations of two regions, acceptance regions, critical regions, or maybe the regions which fail in the critical section, then this hypothesis called good. So we have to H1 is not equal to H2, then I compute the value of statistical false regions. So the critical regions under the normal curve stated earlier can be divided into two ways, side to side, one tail or two tail. The third step is a testing procedure to conduct a gradation. So the involves selecting appropriate probability distributions for the particular test, that is probability distributions may be applied. Competitions is the last first three steps. After these three steps have design
for a statistical test, we now proceed to the fourth step, computing various measures from the random size which is necessary for apply the test. So the conclusions include the test statistic and the standard error of the statistical characteristics. Finally, we came to conclude that the stage whether we are going to accept the hypothesis or the null hypothesis is very much important, because the hypothesis is tested in the form of its acceptance regions and the hypothesis is not accepted in the rejection regions. So the computed value of the statistical fall in this region, it means the value is less than the critical value. So the hypothesis is accepted. If the contrary, the computed value is more than this critical value, then it is the statistical fall inside the region and this null hypothesis rejected. Once the hypothesis is rejected, then obviously the another hypothesis, that is alternate hypothesis, is automatically accepted. If one hypothesis is rejected, then another is accepted. These are contrary to each other. So let's summarize the five different type of hypothesis. First is called descriptive hypothesis. Second, sorry, six type of hypothesis. Descriptive hypothesis. Second is relational hypothesis. Third is comparative hypothesis. Fourth is causal hypothesis. And five is statistical hypothesis. And the last is called working hypothesis. So all hypotheses are having its own behavior, own significance. So variable which may be used to test this hypothesis. So clearly we are going to analyze these things before resulting or concluding any session or any decision lastly. So good hypothesis is something which is should be empirically stable, deductible, logical interference, and should be conceptually clear. Hypothesis must be specific, not in general form. After that, you have to make some collections of procedures for analysis, the sample processing, then setting the hypothesis regards with the under the assumptions, and one hypothesis is accepted, another is rejected. So null hypothesis is a very useful tool to test the significant difference. So any hypothesis in particular, this is called the region that where we are measure this truthfulness of this setting of your hypothesis or relationship between the variables.
Uh,